Hello guys, welcome to my class. Today I am going to start with one of the new chapter from the book Moment class 9th, and the chapter you can see here the title In the Kingdom of Fools. So let's start reading. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? So, in this story, we will come to know about the king and their kingdom. The main theme of this story is that a wise enemy is better than a foolish friend. In this story, in the kingdom of fools, the foolish king and his foolish minister, instead of punishing the real culprit, try to punish the innocent people. At last, a wise guru came to their rescue. He rids the people of the reign of the fools. So let's start with the chapter and come to know what happened in this chapter. Guys, you can open your book. You might get some display problem, so please open the book. Let's start reading. In the kingdom of fools, both the kings and the ministers were idiots. So, एक राज्य रहता है, किंगडम राज्य है जहाँ पे राजा और उसके मंत्री दोनों जो भी रहते हैं सारे बहुत गधे रहते हैं, मूर्ख रहते हैं. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. अब चूँकि पहले ही बता दिया गया है कि वो दिमाग से थोड़े कम होते हैं और बुद्धिमत्ता उनकी उतनी होती नहीं है और वो बाकी राजाओं की तरह अपना राज्य का संचालन ठीक से नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्होंने रात को दिन और दिन को रात में बदलने का निर्णय ले लिया है. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. अब क्या उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि आज से सभी व्यक्ति रात को ही जागेंगे, अपने खेतों में रात में काम करेंगे, रात में ही अपना बिजनेस करेंगे, दुकानें खोलेंगे और जब सुबह होने लगेगी तो वो सोने के लिए अपने बेड में चले जाएंगे. मतलब जो एक्टिविटी हम हमारे दिन में करते थे उसको रात में करने का ऑर्डर दिया और जो एक्टिविटी रात की थी उसे उन्होंने दिन बना दिया था. Anyone who disobeyed would be punished with death. और जो भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे मौत की सज़ा दी जाएगी. The people did as they were told to fear the death. अब वहाँ की जो प्रजा थी वो डर के मारे, मौत के डर की वजह से जैसा राजा ने कहा उसको फॉलो करने लगते हैं. The king and the ministers were delighted at the success of their project. अब राजा और उसका मंत्री बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि उनका ये प्लान काम कर गया. One day a guru and his disciple arrived in the city. एक बार एक गुरु और उनके शिष्य उस नगरी में आते हैं जहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था थी. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep. Not a mouse stirring even. अब जब वो आते हैं, दिन के समय आते हैं, तो जैसा उन्होंने आशा की थी, एक्सपेक्ट किया था कि लोग चलते फिरते मिलेंगे, दुकानें खुली मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है. वो पाते हैं कि हर व्यक्ति अपने घर में सोया हुआ है. इवन एक चूहा भी उनको सड़कों पे दिखाई नहीं देता है दिन के समय में. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. यहाँ तक कि जो जानवर थे उनको भी दिन में सोने का आदेश दिया गया था. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about his nightly business. अब वो दोनों जो गुरु और चेले थे वो भटकते हुए इस शहर में आ जाते हैं और वो देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि लोग इस वक्त तक दिन में कैसे सोए हैं, चारों तरफ इतना सन्नाटा कैसे हैं. वो लोग सुबह से लेकर शाम तक उस सिटी में भटकते हैं, नगरी में भटकते हैं और अचानक जब रात होने को होती है, शाम
के बाद धीरे जैसे ही दिन ढलता, सूरज ढलता है, रात होने को है, तो सभी लोग अपने कामों की ओर जाने लगते हैं। The two men were hungry now that the shops were open. They want to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dodu. Whether they bought a measure of rice, a bunch of bananas, it cost a dodu. The Guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. अब वो दोनों जो गुरु और चेले थे वो बहुत ज़्यादा भूखे हो चुके थे। अब रात का समय था, उन्हें भूख लगाई थी और दुकानें भी खुल चुकी थी, तो वे खाने का सामान खरीदने के लिए निकले। और जब वे दुकान पर जाते हैं तो वे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पाया कि हर चीज़ सिर्फ एक ही सिक्का दे करके खरीदी जा सकती थी। अब वो चाहे चावल हो या केले का गुच्छा हो, सभी की कीमत सिर्फ क्या थी? एक सिक्का थी। महंगी से महंगी और सस्ते से सस्ती चीज़ भी। तो गुरु और चेले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इस तरीके की व्यवस्था को देखकर, क्योंकि ऐसा उन्होंने कभी अपनी लाइफ में ना पहले कभी देखा था, ना ही सुना था। और वे अपनी आवश्यकता की सभी चीज़ें खाने की खरीद करके लेकर आ जाते हैं। Sorry for the inconvenience, guys. Next paragraph. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was the kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay here. अब जब वो खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं, तो जो गुरु होते हैं उनको एहसास होता है कि ये जगह मूर्खों की जगह है, मूर्खों का राज है, इसलिए यहाँ पर ठहरना ठीक नहीं है। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल। उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि यहाँ रुकना अच्छी बात नहीं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, एवरीथिंग वाज चीप हियर। वो जो शिष्य था वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ से हर चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, खाने का सामान भी बहुत ज़्यादा सस्ता था। द गुरु सेड, लेट्स सी व्हाट द गुरु सेड। They are all fools, this won't last very long and you can't tell what they will do to you next. ये सभी लोग मूर्ख हैं, पागल हैं, तुम्हें यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि क्या पता तुम्हारे साथ ये कुछ गलत कर बैठे या कल को तुम्हारे साथ इस जगह पे कुछ हो जाए। अभी ये जगह तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आने वाले समय में यही जगह तुम्हारी परेशानी का सबब बन जाएगी, कारण बन जाएगी। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। अब जो शिष्य था, स्टूडेंट था, उसने अपने गुरु की बात नहीं मानी। He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, "Do what you want. I am going," and left. अब उसने बोला कि तुम्हें जो भी लगे तुम यहाँ करो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, और ऐसा कहते हुए गुरु वहाँ से निकल जाते हैं। The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side scared bull. अब जो शिष्य था वो लालच बस यहाँ रुक जाता है कि एक सिक्का देने पर अच्छे से अच्छा सामान, महंगी से महंगी चीज़ें खाने पीने की मिल जाती हैं। तो वो जो चेला रहता है, शिष्य रहता है, वो अपने गुरु के बिना यहाँ रहना शुरू करता है और हर दिन केले, घी, चावल, दूध इतना ज़्यादा मात्रा में खाने लगता है कि वो सड़क के किनारे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई वो एक मोटा सा सांड हो, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. एक बार दिन के समय में जब सभी लोग सो रहे थे तो एक व्यापारी के घर में चोरी हो जाती है। He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. अब जब जो चोर व्यक्ति था,
जब वो घर से निकलना चाहता था, उसने पूरा सामान तो चुरा लिया और निकलने के लिए उसने दीवार में एक बिल्कुल छोटा सा छेद कर दिया कि चुपचाप से मैं इस छेद से बाहर निकल कर जा सकता हूँ। और जैसे ही वो लूट का माल लेकर बाहर आ रहा था तो उस पुराने घर की दीवार उसके सर पर गिर जाती है और उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, क्या बोला कि महाराज सरकार, मेरा भाई अपना पुराना धंधा कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर उसने नहीं बताया कि मेरा भाई चोरी कर रहा था, उसने क्या बताया कि मेरा भाई जो अपने पुराने धंधे को अंजाम दे रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और इस बात का आरोप किसके ऊपर लगाया गया, उस व्यापारी के ऊपर। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसके ऊपर किस बात का आरोप लगाया गया कि तुम्हारी दीवार से गिर करके वो चोर मरा है, इसका मतलब तुम सबसे बड़े दोषी हो क्योंकि तुमने अपने घर की दीवारों को मजबूत नहीं बनाया था। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डॉगर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर हिज इनजस्टिस। उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें एक मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी यहाँ पर, और इस अपराधी को दंड अवश्य दें। ऐसी बात किसने रखी थी, उस चोर के भाई ने, और कहा था कि अब मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है तो हर्जाने के तौर पर मेरे परिवार को कुछ क्षतिपूर्ति राशि, कंपनसेट या कंपनसेशन मनी, क्षतिपूर्ति की राशि दी जानी चाहिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एडवांस समन द ओनर ऑफ द हाउस। अब राजा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें न्याय ज़रूर मिलेगा, और उन्होंने ऐसा करते हुए उस घर के स्वामी को, जो एक व्यापारी था, उसको भेज दिया कि जाओ उसे मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। हियर लुक एट दिस, ही इज़ द किंग and his minister. Now let's move to the next paragraph. Again I am requesting you to please open your English book so you may see the text very clearly. When the merchant arrived, the king questioned him, What is your name? Such and such, your highness. Were you at home when the dead man burgled your house? अब जब वो यहाँ पर आ जाता है व्यापारी, तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो व्यक्ति अपना नाम बताता है, और उन्होंने पूछा राजा ने कि जिस वक्त चोरी हुई क्या तुम उस घर में ही थे? तो उसने बोला, यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड वेल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। हाँ, मैं उसी घर में था जिस वक्त वो जिस घर में चोरी कर रहा था, और दीवार घर की जो थी वो थोड़ी कमज़ोर थी तो उसके ऊपर गिर गई और इस तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। द एक्यूज प्लीड गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। क्या कहा उन्होंने कि तुम्हें अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए, तुम्हारी इस दीवार ने इस व्यक्ति के भाई की जान ले ली, तुम इसके हत्यारे हो और हम तुम्हें इसका दंड जरूर देंगे। तो देखिए बच्चों, किस तरीके से उस व्यापारी को राजा के द्वारा अपनी बुद्धिहीनता के चलते प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि उसे पनिश किसको करना चाहिए था, उस चोर को और उसके भाई को। लेकिन चोरी करने के इल्ज़ाम के बावजूद उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो इस बात का सारा ठीकरा किसके मुंह पर फोड़ा जा रहा है, उस व्यापारी के। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल, इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम। उसने क्या कहा व्यापारी ने कि महाराज मुझे दोष क्यों दिया जा रहा है, जो दीवार थी वो मैंने तो नहीं बनाई थी, जिसने ये दीवार बनाई है उसकी गलती, आप उसे फांसी पर टांगिए। Who is that?
राजा ने पूछा, कौन है वो जिसने ये दीवार बनाई थी? माय लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ड बाय माय ब्रदर्स, माय फादर्स टाइम. आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय. अब ये दीवार जब मेरे पिता थे तो उनके समय में बनाई गई थी और मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने ये दीवार बनाई थी. वो व्यक्ति अब बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुके हैं, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तो आप उन्हें दंड दे दीजिए. इस तरीके से व्यापारी ने खुद को बचाने के लिए एक चाल चली और किसी और का नाम लगा दिया. द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द bricklayers who had built the wall. They brought him tied and his food. अब राजा ने आदेश दिया कि जाओ, जिसने दीवार बनाई थी उसके हाथ पैर बांध करके यहाँ ले आओ. उनके मंत्री वैसा ही करते हैं, उस दीवार बनाने वाले को लेकर आते हैं. You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes my lord, I did. उन्होंने क्या कहा कि तुमने ये दीवार बनाई थी? तो उन्होंने कहा, हाँ मैंने दीवार बनाई थी. What kind of a wall is that you built? किस तरीके की बेहुदा दीवार तुमने बनाई थी? It has fallen on a poor man and killed him. ये एक व्यक्ति के ऊपर गिर गई और वो मर गया. You have murdered him, we have to punish you by death. अब तुम उसके हत्यारे हो और इसके लिए हम तुम्हें मौत की सज़ा सुनाते हैं. Before the king could order the execution, execution मतलब फांसी की सज़ा. जब फांसी की सज़ा सुनाने ही वाले थे उसी समय उस ब्रिकलेयर दीवार बनाने वाले ने क्या कहा? प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गेव मी योर ऑर्डर. इट इज़ ट्रू, आई बिल्ड दिस वॉल एंड आई वॉज नॉट गुड. मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है और ये दीवार बहुत ज़्यादा गलत बन गई थी. आई रिमेंबर आई वॉज, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her ankles jingling, and I couldn't keep my eyes on my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. अब देखिए यहाँ पर एक के बाद एक सभी एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं. तो जब उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई जाने वाली थी तो उस व्यक्ति ने राजा से एक छोटी सी अनुनय विनय की, एक निवेदन रिक्वेस्ट किया कि आप अपना आदेश सुनाने से पहले मेरी बात सुन लें. राजा ने बोला, बताओ क्या बात है? तो उन्होंने कहा, जो राजमिस्त्री था उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन मेरी इस गलती के पीछे मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरा मस्तिष्क, मेरा दिमाग किसी और काम में लगा हुआ था. और मैं एक ऐसी डांसर को जानता हूँ, जिस वक्त मैं ये दीवार बना रहा था तो वो जो डांसर थी, जो नर्तकी थी, वो पूरे दिन इस सड़क पर आती जाती थी और अपनी पायल छनकाती थी और मैं उस पर इतना ज़्यादा मोहित हो गया कि मैं ध्यान से काम नहीं कर पाया. उसने मेरा ध्यान भंग कर दिया. इसलिए इस दीवार को बनाने के लिए आप मुझे दोषी ना ठहराएं और आप उस नर्तकी, उस डांसर को बुला लीजिए जिसने मेरा ध्यान भटकाया. अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो ये दीवार मजबूत बनती. और साथ में उसने ये भी कहा कि मैं उस डांसर को जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है. यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुक इनटू इट. इट इज़ नॉट ईजी टू जस्ट सच कॉम्प्लिकेटेड केस. लेट्स गेट द डांसर wherever she is. उन्होंने कहा, हाँ ये केस तो अब और भी ज़्यादा गंभीर होते जा रहा है और इस केस को निपटाना आसान नहीं है. तुम बिल्कुल सही कह रहे हो. जाओ उस डांसर को बुला करके लेके आओ. द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन केम ट्रम्बलिंग टू द कोर्ट. अब वो जो नर्तकी थी, डांसर थी, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी महिला हो चुकी थी और भय से कांपते हुए, ट्रम्बलिंग, शिवरिंग विथ फियर, कपकपाती हुई कोर्ट में आई राजा के दरबार में. डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल? डिड यू सी हिम? उसने क्या बोला, जब ये व्यक्ति वहाँ दीवार बना रहा था तो क्या तुम उस सड़क में बार बार नाचते कूदते हुए निकल रही थी? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल. क्या बोला कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस वक्त ये दीवार बन रही थी और मैं वहीं से निकल रही थी. सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन with your
क्लिट्स जिंकलिंग, अपनी पायल की झनकार के साथ तुम बार बार वहाँ से निकल रही थी। यू आर यंग एंड यू आर डिस्ट्रैक्टेड हिम सो ही बिल्ड अ बैड वॉल। तुम्हारी इन्हीं गलतियों की वजह से तुमने उसका ध्यान भंग कर दिया और इस व्यक्ति ने पूरी की पूरी गलत दीवार बना दी और ये एक गरीब व्यक्ति के ऊपर गिर गई और वो बेचारा मारा गया। आप जानते हैं कि जो मारा गया वो कितना शरीफ था, है ना, परंतु ये बात वो राजा और उसके मंत्री नहीं समझ रहे थे। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम दिया गया है द फुलिश किंग, द किंगडम ऑफ फूल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे की स्टोरी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दिस इज़ योर पार्ट 1। वेरी सून आई विल अपलोड the part 2 of this lesson. Till then, keep watching, keep understanding. Thank you.